Welcome to this International Youth Day, which falls on 12th August, and we are also celebrating International Indigenous Day. That is the title, I think, for 9th August. International Day for World's Indigenous Peoples. International Day for the World Indigenous People, so which comes on 9th August. So we have two occasions of celebration, and I think there is a connection between these two celebrations. Indigenous means something which is aboriginally belonging to some place. तो देशी जिसको कहते हैं, खांटी देशी जो है वो इंडिजिनस है. और ये जो इतने पुराने समय की जो बात है उसको एक साथ रखना और जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करना, इसके लिए एक मैकेनिज्म की जरूरत होती है. So humanity has evolved a mechanism to transfer the learned experiences and knowledge to the young generation. And this transference is something which is not just unique to human beings, but it is true to any living creature. So this way we can see that the progeny is connected with posterity. What is called posterity? Progeny is connected with posterity. तो आज इंटरनेशनल यूथ डे है और इंडिजिनस पीपल जो किसी भी जगह सबसे पहले से रहते हैं, तो उनकी जो ट्रेडिशन चलती आती है उसमें युवा का सबसे ज़्यादा रोल होता है. तो पहला डे जो 9th अगस्त का है वो इसलिए मनाते हैं कि इट इज़ मेंट फॉर प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर. It is meant for preserving the, let us say, history and tradition of every form of life. And the preservation is in the hands of the present generation, particularly the youth. Now, youth must be guided so that they are not cut off from their roots. At the same time, they don't have fetters of the past uh, for not allowing them to progress. So what we transfer, in fact, what we intend to transfer is all the things which are essential for survival, which are essential for our carrying forward the positivities. And this way we have survived, in fact, through generations. But International Youth Day is meant for another purpose. And that purpose is for the humanity to be aware of the problems associated with youths. In fact, if we see, it is not just one way that youth must be aware of their tradition, their culture, and their past, but also the generation which is older generation of our time must be aware of the issues and aspirations of youth. So this day reminds us of a kind of mutual relationship and bonding, and also strengthening that mutual relationship and bonding so that there is no generation gap, right? So with that intention, we are together to celebrate and also remind us of certain things which are essential for our knowledge, certain thing which is essential for our continuation. So here we have Sumant Sarthi Sharma, who will take us on a journey of the way indigenous civilization and culture is survived, and the mechanism which we have developed for the preservation of all the things which are essential for
our survival and also growth. So first we will have Sumant Sharma, who will guide us. And in fact, Bhopal is meant for two very interesting things. I was fortunate enough to visit Manav Sangrahalaya, that is there in Bhopal, and it's in a big area. And every form of house making, every form of cultivation, and all those things which indigenous people follow are depicted there, starting from Jammu and Kashmir to every part of our country, Andaman Nicobar, and then Kerala, and then tribal areas, northeast areas, Gujarat. So there in the Mano Sangrahalaya, we find the depiction of all these indigenous forms of life. And then there is another interesting museum in again Bhopal, that is Tribal Museum. And we were lucky, Sumanta, to visit that museum together. I recall that moments very vividly. I can see even lights which are there, and I just see myself walking in between different sorts of structures which are arranged in that tribal museum. So it is nice to see, in fact. So if you find time, then certainly you should plan to visit Tribal Museum as well as Mano Sangrahalaya in Bhopal. So let us now have Sumant Sharma first. How much time you have planned for? How, it depends on the chair, No, no, how much you time can. you are providing me. uh, Once a professor asked Priyadarshi Jetli how much time I have to present my ideas. So he said that till you reach the kingdom. Yeah, till we reach the zenith. Uh, For sure, for sure. Anyways, Let us I, have I will presentation. like to take around half an hour, or I will like to culminate. Fine. You can Yeah. take your time. Yes. Okay. So thank you, Dr. Tiwari, the coordinator of Thursday Mind Meet. First, to organize a very beautiful event, which is not only related to the indigenous people of this world, and especially we will be concentrating on the Indian part of it and certain issues, but also celebrating International Youth Day, because universities are always youthful, irrespective of the fact how old they are. And our university is one of the youngest university in our vicinity as well as in our country, which has grown so nicely. So it is definitely, it gives enough of reasons for all of us to celebrate the International Youth Day. And I hope that more and more students will be celebrating it in some form or the other. It's not only about this meet. But before we move to the celebration of youth as such, and listening to your ideas, allow me to present certain issues which are related to indigenous people of this world. So I will share with you the screen. I hope so that this will be visible soon to you guys. Is the screen visible, Tiwari ji, Dr. Madhu? Ah, ah. Okay. Okay. So it is related to preservation of indigenous people's culture, because if you see Azadi Ka Amrit Mahotsav, it is linked to Azadi Ka Amrit Mahotsav, और उसमें भी अगर आप देखेंगे तो एक देखेंगे कि एक कनेक्शन है जहाँ पे कि हम अपने प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर के बारे में बात करते हैं, रिच डाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं, एंड इट इज इनकम्प्लीट without the indulgence and infusion of the indigenous people. तो इंडिजिनियस पीपल क्या होते हैं, अगर हम इनको समझने की कोशिश करें तो इसको बहुत सारे तरीके से समझा जा सकता है. Some people will like to call it local, some people will call it like original people or native people, some use this terminology ethnic, या कभी कभार aboriginal भी terminology यूज किया जाता है. हालांकि aboriginal जो terminology है वो यूजुअली ओशेनिया सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें
तो वहाँ पे यूज किया जाता है। ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वाले एरियाज में ज्यादा इस टर्मिनोलॉजी को यूज किया जाता है। अगर इंडिया में देखें तो विर्गिनियस ज़ाक्सा या आई डू नॉट नो इवन हाउ टू प्रोनाउंस इट, बट उनकी एक स्टडी है 1999 की, जिसमें उन्होंने ट्राइबल्स को हमारे देश में जो है ये कहा गया है कि दीज आर बेसिकली द इंडिजिनियस पीपल ऑफ आवर कंट्री। तो ये इंडिजिनियस पीपल क्या है या इनके इश्यूज क्या हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट allow me to tell you that there are certain international norms which are related to it। जैसे अगर आप देखें इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल जो है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। इट इज ए कन्वेंशन विच इज फॉलोड सिंस 1994। यूनाइटेड नेशन के 1994 के एक रेजोल्यूशन के पास करने के बाद से 9 अगस्त जो है उसको मनाया जाता है। और इनफैक्ट 2019 को जो है ईयर ऑफ इंडिजिनियस पीपल माना गया था। नाउ if you see the statistics of indigenous people, so you will find that around 476 million indigenous people are there in this world, yeah? And 6.2% of the global population is basically the indigenous people, so which is quite high। अगर आप देखें कि 6.2% अगर कोई population को आप indigenous कह सकते हैं, so it's a very considerable amount of people। आप अगर देखें तो बहुत सारे पीपल जो कि हैव अ लॉट ऑफ स्टेक इन वर्ल्ड ऑर्डर, वो जो है इवन लेस देन 1%, लेस देन 2% पे आते हैं, लेकिन ये 6.2% होने के बाद भी दे आर क्वाइट अनहर्ड या देयर वॉइसेस आर नॉट समथिंग व्हिच आर प्रेजेंटेड इवन। तो इसके लिए या इसके ऊपर जो है आपको बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा यूनाइटेड नेशंस के वेबसाइट्स पे। एक लिंक मैंने देके रखा हुआ है और आप अगर थोड़ा सा भी सर्च करें तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ डेटा ऑन दिस। But I will not go over there, and rather we will discuss a few more things which are important. First thing कि decade of indigenous languages जो है उसको मनाया जा रहा है 2022 से 2032 तक, क्योंकि जो आइडिया है वो ये है कि करीब एक लैंग्वेज पर 2 वीक्स जो है खत्म हो जाती है इंडिजिनियस पीपल की। तो इंडिजिनियस पीपल को अगर आप मोटे तौर पे समझें तो ये ज्यादा देशों में तो नहीं, पर फिर भी अराउंड 90 नेशंस, 90 रिकॉग्नाइज्ड नेशंस में जो है आपको इंडिजिनियस पीपल मिल जाते हैं। एंड दे आर बेसिकली ट्राइब्स या ओरिजिनल्स ऑफ दोस प्लेसेस एंड दे आर लेफ्ट बिहाइंड। इंडिजिनियस पीपल की अगर आप एक बेसिक प्रॉपर्टी देखेंगे या कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे तो दे आर पुअर पीपल। पॉवर्टी जो है उनकी एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक आपको मिलेगी। मैं आगे चल के आता हूँ उन चीजों पे। तो दिक्कत की बात क्या है कि उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, उनके लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए बहुत ज्यादा या तो जैसे मुझे कहना चाहिए कि प्रोजेक्ट्स या सारी चीजें नहीं है, और अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी देखा जाता है कि नॉट मेनी पीपल सर्वाइव। तो अगर आप देखें तो अभी जो इतने लोग इंडिजिनियस पीपल हैं या उनकी जो लैंग्वेजेस वो सर्वाइव कर रही हैं वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, और ये बहुत ही ड्रास्टिक रेट है। अगर आप देखें तो हर 2 वीक में एक लैंग्वेज का खत्म होना, यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज ए वेरी पैथेटिक सिचुएशन अगर इस चीज को देखें। तो यूनाइटेड नेशन ने जो है एक संकल्प लिया है जिसको हम कहते हैं कि 2022 से लेकर 2032 तक, मतलब कि अगले साल से, और दे विल सेलिब्रेट दिस एज डेकेड। तो उसमें वो प्रिजर्वेशन और उसके जो है एक्सपेंशन के लिए बहुत काम करेंगे इंडिजिनियस पीपल के लिए। तो दे वांट टू कंजर्व द इंडिजिनियस लैंग्वेजेस व्हिच हेल्प्स प्रिजर्व देयर कल्चर्स, वर्ल्ड व्यूज, विजन्स एज वेल एज एक्सप्रेशंस ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। एंड द होल आइडिया इज जिसको हम कहते हैं लीविंग नो वन बिहाइंड, है ना। जैसे गांधी जी का कॉन्सेप्ट था सर्वोदय, है ना, या अंत्योदय। इसी तरीके से अगर आप आज के देश में, आज के डेट में अगर हमारे देश की सरकार का एक नीति देखें या एक एम देखें जिसको हम कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो these are basically meant for that nobody should be left behind and everybody should be included in decision process as well as political processes। तो ये जो आइडिया है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये इंडिजिनियस पीपल पे भी एप्लीकेबल होना चाहिए, या उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब जो यूनाइटेड नेशन है वो कोशिश कर रही है कि जो इंडिजिनियस कम्युनिटीज हैं या सोसाइटीज हैं जो कि पीछे रह गई हैं, अगर आप लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी समझते हैं, आई विल गिव यू अ वेरी लेमन आइडिया अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। हम पॉलिटिकल फिलोसफी या पॉलिटिकल साइंस में उस पर काफी ज्यादा डिस्कशन करते हैं, बट जस्ट टू गिव यू अ जनरल अप्रोच, एक
सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का एक सिंपल आइडिया ये होता है कि आप अपने कुछ राइट्स जो हैं सरकार को दे देते हैं, और सरकार जो है आपको बहुत सारी जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, और आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप कुछ ड्यूटीज करें, ठीक है ना। तो स्टेट और सब्जेक्ट ये दो एंटिटीज होते हैं किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, और वो जो है आपस में मिलजुल के काम करती है। तो जो सब्जेक्ट होते हैं वो आप एक तरीके से देख सकते हैं सिटीजन्स होते हैं, या कभी कभार सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स भी होते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं इंडिजिनियस पीपल काउंट नहीं होते, या उनको जो है पिछड़ा मान के छोड़ दिया जाता है। तो इनिशियली या 20th सेंचुरी की हिस्ट्री अगर देखें तो यू विल फाइंड दैट द इंडिजिनियस पीपल हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड एंड दे डू नॉट हैव अ से इन पॉलिटिकल प्रोसेस, और दे आर नॉट कनेक्टेड टू द मेन स्ट्रीम, जिसे मुझे कहना चाहिए कि डेवलपमेंट एंड आइडियोलॉजीज, दे आर डाउन ट्रॉडन, उनकी जो है एक दूसरे तरीके से लाइफ चलती है। तो उनको जो है इंक्लूड करने की कोशिश और अंदर लाने की कोशिश, so that there can be a new social contract theory which is based on genuine participation and partnership that fosters equal opportunities and respects the right, dignity and freedom of all. Actually बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे इन सब चीजों में, मैं जा भी नहीं सकता, मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन एक चीज बता सकता हूं कि ज्यादातर नेशन का कॉन्सेप्ट जब आया 20th सेंचुरी के आसपास, जो नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट कहते हैं हम, वो एक न्यू कॉन्सेप्ट है। यूजुअली जो है कंट्रीज जिसे हमें कहना चाहिए मोनार्की हुआ करती थी, तो उसके बाद धीरे धीरे नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आया लेटर ऑन, और उसके बाद ये जो इंडिजिनियस पीपल हैं या लोकल ट्राइब्स हैं या और भी चीजें हैं, ये अभी भी मोनार्की या किसी और तरीके की सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, या फॉर्म्स ऑफ जैसे कहना चाहिए रूलिंग को फॉलो करते हैं, और ज्यादातर वो जो है थोड़े जंगल या थोड़े अंदरूनी इलाकों में रहते हैं। तो उनको जो है कभी भी मेन स्ट्रीम से जोड़ने की बहुत ज्यादा कोशिश किसी भी देश ने या किसी भी सरकार ने नहीं की, लेकिन लेटर ऑन इट हैज वाज फेल्ट, से फॉर इन लास्ट 2 decades or so it was felt that they have been left behind and there is a need for including them also to the mainstream world. तो अब जो है उनको कोशिश किया जा रहा है इवन विद द प्रिजर्वेशन ऑफ देयर ओन आइडियल्स एंड प्रिंसिपल्स, है ना। ऐसा नहीं कि उनको चेंज कर दिया जाए, उनको वैसे ही रखा जाए, लेकिन उनको मेन स्ट्रीम से भी जोड़ा जाए, इसकी कोशिश, और ये जो है इसीलिए इतना आसान भी नहीं है। तो जो भी है, तो एक न्यू सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की बात की जा रही है जिसमें कि सारे लोग जो है इंक्लूड हो सके। अब जो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो उसमें से 86% ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ग्लोबली वर्क इन इनफॉर्मल इकोनॉमी। अगर आपने देखा होगा तो एग्रीकल्चर या और भी बहुत सारे इस तरीके की फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री और इन सब चीजों में इंक्लूड है, कंपेयर टू 66% ऑफ द नॉन इंडिजिनियस काउंटरपार्ट्स। तो ये एक मजेदार चीज है कि वो अभी भी ज्यादा एक्चुअली इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं या वो ज्यादा इंक्लूडेड है, हालांकि उनकी संख्या भी बहुत कम है। It is only 6.2% of the population of the world, but they are providing lots of services and lots of work and products to us. लेकिन हम इतने सारे लोग जो हैं इतना काम नहीं करते, ये एक पहली चीज है। दूसरी चीज, इंडिजिनियस पीपल आर नियरली 3 times as likely to be living in extreme poverty, which is the इश्यू जो कि मैं आगे चल के आपसे डिस्कस भी करूंगा, कंपेयर टू देयर नॉन इंडिजिनियस काउंटरपार्ट। एंड दिस इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ देयर एग्जिस्टेंस कि दे आर इन एक्सट्रीम पोवर्टी। मतलब अपार्ट फ्रॉम कि वो थोड़ा सा एंजॉय करते हैं, थोड़े से कुछ ऐसे कलरफुल सेलिब्रेशंस करते हैं दिस एंड दैट, बट अपार्ट फ्रॉम दैट दे लिव इन वेरी ड्रास्टिक सिचुएशंस, मेडिकल हेल्थ इश्यूज, एजुकेशन या और भी बहुत सारी चीजें जो है नहीं है वहाँ पे। Globally, 47% of all indigenous people in employment have no education, compared to 17% of the non-indigenous counterparts. तो ये सारी चीजें भी जो है आप डेटा देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अब इनके इश्यूज क्या है, थोड़ा सा इनको समझने की कोशिश करते हैं। इश्यूज है, सबसे बड़ा इशू जैसे मैंने बोला ही है कि इट इज पोवर्टी, दैट दे आर वेरी पुअर पीपल एंड दे आर गेटिंग पुअरर, और उसके कारण से जो है कभी कभार डिसेंट भी होता है, कभी कभार सरकार के साथ उनका जो है झड़प भी होती है, झगड़े भी होते हैं, और बहुत सारे मूवमेंट्स भी हैं इस तरीके के। कुछ लोग तो अपना ओन स्टेट भी चाह रहे होते हैं, बट द होल आइडिया इज प्रिसाइसली बिकॉज दे हैव बीन सोशली एक्सक्लूडेड। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ये अपार्थीड के साथ भी देखा जाता था एक जमाने में, ये और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जिसको कि सोशल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल माना जाता है, चाहे वो रेसिज्म हो, चाहे वो अपार्थीड हो, चाहे वो कास्टिज्म हो, या अभी हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करते हैं, कभी बार ह्यूमन राइट्स में भी बात करते हैं। तो दे हैव बीन सोशली एक्सक्लूडेड।
तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है उसके पीछे उसके कारण से जो है बहुत सारे एप्रीहेंशंस भी रेज होते हैं या क्रिएट होते हैं, जिसके कारण से भी दे आर नॉट वेरी हैप्पी विथ देयर ओन एग्जिस्टेंस एज वेल एज विद द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर्स। उसके बाद उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं है ना, दे आर नीदर ऑन, मतलब कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इतने किए गए हमारे देश में भी और दूसरे देशों में भी, पर वो हार्डली दे पार्टिसिपेट इन इलेक्टोरल प्रोसेसेस और एनी काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड दिस एंड दैट। तो गिवन दैट दे आर आल्सो they feel dejected, they feel that they have been left out ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण से उनका इंक्लूजन नहीं हो पा रहा। इस तरीके से एजुकेशन, मतलब कि ऐसे तो हमारे देश में अभी भी 100% एजुकेशन नहीं है, या बहुत सारे स्टेट्स में या प्लेसेस में तो मेरे ख्याल से 50% भी अभी पॉपुलेशन एजुकेशन का जो परसेंटेज है, लिटरेसी का जो रेट है वो नहीं पहुंच पा रहा है। इवन इफ वी क्लेम दैट एट सम प्लेसेस वी आर 100% है, लेकिन लिटरेसी और एजुकेशन दो अलग अलग इश्यूज हैं। पर चलिए अगर लिटरेसी की भी बात करें तो लिटरेसी भी नहीं है, और since they belong to their own cultures and they have their distinct languages and very few people speak those kind of languages, so they are completely cut off, क्योंकि वो आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना लिखना नहीं जानते, वो आपके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर सकते, और शायद आप भी और हम भी नहीं कर सकते उनके साथ इंटरेक्शन। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसके कारण से और एप्रीहेंशंस क्रिएट होते हैं, टसल्स क्रिएट होता है एंड सो ऑन। हेल्थ एक बहुत बड़ा इशू है, lots and lots of them are having health issues, or they do not stay in very healthy environment। और कोविड के जो है कुछ केस स्टडीज आ रहे हैं जिसमें कह रहे हैं कि इंडिजिनियस पीपल तक अब कोविड भी पहुंच गया है, एंड दे विल मतलब इट इज रियली हर्टिंग देम इन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड तो पहुंच जाता है लेकिन कोविड का रोकथाम नहीं पहुंच पाता, या वैक्सीन भी नहीं पहुंच पा रहे हैं उनके पास, तो उसके कारण से भी जो है इश्यूज काफी डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, इसको छोड़ के एग्रीकल्चर एंड लैंड इश्यूज बहुत होते हैं, कभी कभार उनको उनके लैंड से हटा दिया जाता है क्योंकि वहां पे माइनिंग होना है, या वहां पे कोई और इशू है, या गवर्नमेंट को वहां पे तेल मिल गया है, या कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, तो उनके खुद के लैंड से हटा जाता है, उसके कारण से रिसेंटमेंट बढ़ता है। इनफैक्ट आई कम फ्रॉम मध्य प्रदेश, but before 1999 when Madhya Pradesh was Madhya Pradesh and Chhattisgarh together, क्योंकि अब मध्य प्रदेश and छत्तीसगढ़ are two different states altogether, तो छत्तीसगढ़ में एक मूवमेंट भी है जिसको हम कहते हैं कि गांव छोड़ब नहीं। तो गांव छोड़ब नहीं अगर आप कभी सर्च करके देखें तो आपको यूट्यूब पे एक सॉन्ग भी मिलेगा, और वहां पर भी जो है एक बहुत सारे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, स्पेशली बस्तर डिस्ट्रिक्ट जो है, और उस तरफ और भी एक दो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे कि काफी सारे इंडिजिनियस पीपल रहते हैं, और वो जो है सरकार से काफी खफा रहते हैं। उसके पीछे एग्रीकल्चर और लैंड इश्यूज ही है, क्योंकि उनकी खुद की जमीनें जो है या तो ले ली गई हैं, या उनको उस तरीके की फार्मिंग नहीं करने देते हैं, या उनको विस्थापित किया गया है ना, रीसेटलमेंट किया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजों के कारण जो है दे आर वेरी एंग्री विद द गवर्नमेंट, और वो कभी कभार तो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट मानते भी नहीं। तो ऐसे भी बहुत सारे इश्यूज बनते हैं। साथ में एक जो अभी कुछ सालों से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है हमारे देश में और ऑल ओवर वर्ल्ड इनफैक्ट, दैट इज रिलेटेड टू ट्रैफिकिंग। तो ट्रैफिकिंग ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इज फाउंड वेरी कॉमन। तो बुद्धि मतलब कुछ बता के कुछ करके जो है उनको ट्रैफिक किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह, कि ऐसा करने देंगे आपको, वैसा करने देंगे, यहाँ से लेके जाते हैं वहां से लेके जाते हैं। सम पीपल आर victims of sexual slavery, some people end up in some other kind of slaveries and some other kind of problems। तो ये देखिए जो है their problems are rising day by day, और काफी बार जो है उनको पुलिस या अदर लॉ एनफोर्सिंग अथॉरिटीज का वायलेंस भी झेलना पड़ता है। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज क्रिएटिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम अमंग देम। तो देखिए ये जो वर्ल्ड इंडिजिनियस पीपल के इश्यूज हैं, मैं तो अभी सिर्फ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, पर ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इस तरीके के इश्यूज आपको मिलेंगे जहां जहां भी इंडिजिनियस पीपल है। और ये सारी चीजें जो है सोशल एक्सक्लूजन के कारण होती हैं, क्योंकि उनको अलग थलग और अकेला छोड़ दिया गया है, उनको सोसाइटी के साथ बांधा नहीं गया, या हमारी कल्चर्स के साथ उनको एमेलगमेट नहीं कर पाए हैं। तो एक एप्रीहेंशन या एक जिसे कहना चाहिए रिसेंटमेंट और एक रिपल्शन एक दूसरे के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा रहता है। तो दिस हैज क्रिएटेड हिल ऑफ प्रॉब्लम इनफैक्ट। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और इनको रोकथाम करने की जरूरत है।
तो भारत ने या भारत सरकार ने जो है बहुत सारे अच्छे कदम उठाए हैं. You will also find lot of articles and lot of people criticizing the government of India and their initiatives, but there are certain good things about our government जो कि उन्होंने किया है, और जिसको अगर थोड़ा सा और कंटिन्यू किया जाए और साथ में कुछ और रिफॉर्म्स किए जाए, तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जब हम इंडिजिनियस पीपल ऑफ एटलीस्ट आवर कंट्री को मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ लेंगे कंप्लीटली. एक तो चीज जो भारत सरकार ने की है वो की है लिस्टिंग करने की. जैसे कि आपने देखा होगा हमारे देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, मतलब कि वी हैव अ शेड्यूल वेयर वी रिकॉग्नाइज दीज पीपल और दीज कम्युनिटीज एज ट्राइब्स इन आवर कंट्री. तो होता क्या है कि देखिए, अगर आपके पास आइडेंटिटी है तो दिस द फर्स्ट स्टेप इज टू गिव एन आइडेंटिटी टू अ पर्सन और अ कम्युनिटी. तो जब हम आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उनको इजीली फॉलो किया जा सकता है. अब नेक्स्ट स्टेप हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम ये भी किया है दैट वी हैव प्रोवाइडेड रिजर्वेशन नॉट ओनली टू शेड्यूल कास्ट पीपल और अदर बैकवर्ड क्लासेस पीपल बट ऑल्सो टू शेड्यूल ट्राइब्स. एक मिनट रुकिएगा. तो जो सेकंड चीज मैं बता रहा था दैट इज रिलेटेड टू रिजर्वेशन, दैट दे हैव प्रोवाइडेड रिजर्वेशन. तो उसके कारण से भी जो है उनको, कुछ लोगों को, नॉट ऑल डेफिनेटली, एंड इनफैक्ट जिनको ज्यादा जरूरत है वहां तक तो अभी तक पहुंच नहीं पाया है, लेकिन फिर भी कुछ तबके के लोगों को जो है थोड़ा बहुत फायदा हुआ है रिजर्वेशन पॉलिसी से भी. उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ और बेसिक कम्युनिटीज के भी बहुत ज्यादा और बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं. और स्पेशली सिंस द मोदी गवर्नमेंट हैज कम, तो उन्होंने भी जो है, मैं अभी पढ़ ही रहा था इसी प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए, तो मैं देख रहा था कि काफी स्टेप्स लिए गए हैं जिससे कि जो है जनजाति जिसको हम कहते हैं, ये समूह को जो है काफी लाभ मिले. तो काफी स्टेप्स लिए जा रहे हैं सो दैट कि उनको जो है एजुकेट किया जा सके, उनके हेल्थ इश्यूज को जो है थोड़ा सा हम जिसे कहना चाहिए कि हेल्थ इश्यूज को हम क्या कहते हैं, हेल्थ के इश्यूज को जो है हम थोड़ा सा वो कर सकें, उनके ठीक कर सकें, या उनको जो है थोड़ा सा बेटर मेडिसिन और हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सके. और साथ में बहुत सारे बेसिक एमिनिटीज जैसे सैनिटाइजेशन हो गया, टॉयलेट्स हो गया, या और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि इनिशियली अवेलेबल नहीं हुआ करती थी. अभी मैं कुछ दिनों पहले हमारे एक स्टूडेंट से भी बात कर रहा था हु इज द ब्लॉक डेवलपमेंट अथॉरिटी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है इनफैक्ट. तो वो भी बता रहा था कि जो सबसे बड़ा काम उनका ऑर्गेनाइजेशन करता है वो यही करता है कि सारे हाउस होल्ड्स जो कि इंटीरियर में है उनको टॉयलेट्स बना के देता है. एंड वी नाउ अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ पक्का टॉयलेट, क्योंकि जहां जहां कच्चा टॉयलेट्स हैं और इस तरीके की चीजें हैं, लोगों को बाहर जाना पड़ता है डेफिकेशन के लिए एंड ऑल, वहां से बीमारियां बहुत फैलती हैं. तो इन चीजों से बचने के लिए जो है सरकार जो है ऐसी बहुत सारे अभी वो लेकर आई है और कर रही है. लेकिन इसके साथ साथ जो आप फोर्थ पॉइंट यहाँ पे देख पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज दैट वी नीड टू सेंसिटाइज अस एज वेल एज देम. अगर मैं ऐसे तो अस और देम वाला डिवीजन मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, एंड इनफैक्ट मैं इस चीज की काफी अगेंस्ट भी हूँ कि कुछ अस और देम नहीं होता, सब अस ही होता है. लेकिन फिर भी अगर अस और देम के बारे में जो डिस्टिंक्शन अभी बना हुआ है तो उसमें सेंसिटाइजेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. सबसे पहले सेंसिटाइजेशन हमें अपने आप को करना है, जिसमें कि हमें समझ में आना चाहिए कि दीज पीपल आर स्पेशल पीपल एंड दे रिक्वायर स्पेशल राइट्स, है ना. इक्वालिटी इज नॉट अ वर्च्यू, इज समथिंग व्हिच आई ऑलवेज प्रोफेस not only in human rights or political science but in lots and lots of areas, कि it is special requirements of certain communities and certain groups and certain people जिसको कि foster करना या हार्बर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो सेंसिटाइजेशन सबसे पहले हमारी होनी चाहिए कि वो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से पिछड़ गए हैं, और उनको एकजुट और एक साथ लाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स उठाने पड़ेंगे. इसी तरीके से उनको भी जो है थोड़ा सा मॉडर्न कल्चर्स के एप्रीहेंशंस या उनको जो डाउट्स हैं या उनको जो डर लगता है हमसे, उससे बाहर निकालने की भी बहुत ज्यादा जरूरत है. इसके लिए बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओज या बहुत सारे इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं गांव में जाके या इंटीरियर एरियाज में जाके लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करते हैं. एंड सिमिलरली हम भी अपने आप को जो है थोड़ा सेंसिटाइज करने की कोशिश करते हैं सो दैट देयर इज एन इक्विलिब्रियम. नहीं तो यूजुअली क्या होता है कि हमेशा
ऐसे जब भी कभी एक दूसरे के आमने सामने होते हैं तो सिचुएशन काफी वायलेंट या नॉट सो पीसफुल हो जाती है, विच इज ए कॉमन प्रॉब्लम इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल हिट एरियाज या इस तरीके के एरियाज जहाँ पे कि माओवादी प्रॉब्लम्स हैं या और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। ये एक बेसिक प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। तो सेंसिटाइजेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। अब इसी के मद्देनजर और ये जो सेंसिटाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इसी को अभी जो तिवारी जी इनिशियली आप लोगों को बता रहे थे कि एक ट्राइबल म्यूजियम और एक इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय दोनों ही जो कि भोपाल में सिचुएटेड है और आसपास है। इनफैक्ट मैं तिवारी जी को बताना चाहूंगा कि ट्राइबल म्यूजियम वाज और इज बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। पहले वहां पे सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हुआ करता था। हम लोग स्कूल से पिकनिक भी गए हैं 2 बार और इट यूज टू बी अ गुड आउटिंग प्लेस। और मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा फोटो खींचने की जगह एक जमाने में वही हुआ करती थी क्योंकि इतनी सारी डिफरेंट चीजें मिलती थी। कहीं आपको नाव मिलेगा, कहीं आपको घर मिलेगा, कहीं आपको छोटा सा गांव बना हुआ मिलेगा, कहीं ब्रिज मिलेगा, कहीं वो धान से चावल कैसे निकालते हैं उसकी पूरी मशीन मिलेगी। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो है आपको मिलती थी वहां पे। तो हम खूब फोटो खींचते थे वहां पे जाके, क्या अरे ये कैसा होता है, वो कैसा होता है, हमने देखा ही नहीं था इस तरीके की चीजें। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय और ट्राइबल म्यूजियम दोनों ही आसपास सिचुएटेड है ईदगाह हिल्स में भोपाल में। एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी गुड प्लेस टू बी एंड लर्न लॉट अबाउट आवर इंडियन कल्चर। तो इसको एंथ्रोपोलॉजी म्यूजियम कहा जाता है। करीब करीब 200 एकड़ में है और इसमें 2 खासियत जो मुझे अच्छी लगती है कि यहाँ पे एग्जीबिशंस होते हैं। एक तो नॉर्मल एग्जीबिशंस होते हैं जो कि वहाँ पे जो कॉन्फ्रेंस रूम्स हैं या हॉल्स हैं वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारे ड्राइंग, पेंटिंग्स और उस तरीके की बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि कुछ कुछ छोटे छोटे आर्टिफैक्ट्स और उनके जो पॉटरीज हैं और इस तरीके के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये सब चीजें दिख जाएंगी। दूसरा होता है ओपन एयर एग्जीबिशन। और जब ओपन एयर एग्जीबिशन होता है तो भोपाल में आप मान लीजिए कि सेलिब्रेशन टाइप का होता है। और वो सेलिब्रेशन क्यों होता है? क्योंकि वहां पे नॉट ओनली दैट यू विल गेट गुड फूड, ट्राइबल लोगों का जो है वहाँ का कल्चर को प्रिजर्व करते हुए उन लोग कैसे खाना खाते हैं तो उसके एक फूड फेस्ट टाइप का लगता है। और साथ में आपको जो है वहाँ पे हर एक चीज ओपनली देखने को मिलेगी, ऐसा अरेंजमेंट होता है। और जो हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं वहाँ पे और सारी चीजें, वो मुझे ये तो नहीं पता कि महंगा पड़ता है कि सस्ता पड़ता है, लेकिन अच्छा जरूर लगता है। और जो लोग हैंडीक्राफ्ट के शौकीन होते हैं वो वहां से कपड़े या चेयर्स, टेबल्स और भी इस तरीके की बहुत सारी चीजें लेने आते हैं। एंड इट्स अ गाला इवेंट। तो वो एग्जीबिशन जो है बहुत अच्छा होता है। और शायद इसी कारण से मुझे भी जो है ट्राइबल्स के बारे में और भी बहुत सारे लोग, बिकॉज आई वॉज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी, तो आई कुड नॉट हैव दैट कॉन्टैक्ट विद द विलेजेस एंड द से इंडिजिनियस पीपल। लेकिन जैसे जैसे ये एग्जीबिशंस और इस तरह की चीजें हुई तो मुझे भी बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला। एंड जैसे तिवारी जी बता रहे थे, ये बिल्कुल सही है कि इट होस्ट्स द कल्चर्स ऑफ ट्राइबल पीपल। अगर मैं बोलूँ भारत के उसमें कॉन्टेक्स्ट में, तो ऑफ फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू एक्चुअली द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स या डीप डाउन। तो जो मुझे भी काफी फायदा हुआ, मैं ऐसे एग्जीबिशंस और यहाँ पे जाके जो है काफी सारी चीजें देख के सीखने को मिली, समझने को मिली। एंड वहाँ पे हर्ट्स और सारी चीजें, अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं तो दिस इज बेसिकली द एंट्रेंस ऑफ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। और इसके पास एक चीज और है, दैट इज वन विहार। तो अगर आपको भोपाल में टाइगर देखना है तो यू कैन गो ओवर देयर एंड सी इट इन नेचुरल एनवायरनमेंट। मेरे ख्याल से तिवारी जी वन विहार नहीं गए, दैट ही मिस्ड। लेकिन वन विहार भी एक बहुत ही अच्छा प्लेस है जहाँ पे कि आप ओपनली शेर या और भी बहुत सारे नेचुरल शेर, मतलब नॉट लायन बट टाइगर्स, वहाँ पे जो है आपको दिख जाते हैं। तो वो सारी चीजें दिख जाती हैं और भी बहुत सारे वन। ये देखिए आप हट्स बने हुए हैं और यहाँ पर भी जाके लोग जो है देख सकते हैं कि ट्राइबल्स। और ये यहाँ पे मुझे एग्जैक्टली तो ये पता नहीं, आई हैव आल्सो पिक्ड अप फ्रॉम द इंटरनेट। आपको यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको कि ये कहाँ इस तरीके के घर मिलते हैं, कैसे लोग रहते हैं, कितनी वहाँ की पॉपुलेशन है, वो क्या खाते हैं या उनके घरों में क्या क्या चीजें होती है। एग्जैक्टली जैसा वहां होता है वैसा ही यहाँ भी बनाया गया है। मतलब आई विल नॉट कॉल इट इवन अ प्रोटोटाइप, इट इज एग्जैक्टली द सेम। अगर आप जाके इनके ओरिजिनल एरिया में जाएं और मानव संग्रहालय में आए तो एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम ही मिलेगा। इसको ये वो भी बता जो है, रहे थे ना, जो
ये कैसे वैसे बना लेते हैं। वो कहते थे कि ये जिन लोगों के स्ट्रक्चर हैं उन्हीं को बुला के बनवाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, दिस इज द थिंग। एक्चुअली ये किसी आर्किटेक्ट या किसी बिल्डर के द्वारा नहीं बनाया गया है, वहीं के लोगों को बुला के उनसे ही बनवाया गया है। तो वो एग्जैक्टली और उनको जो चीजों की रिक्वायरमेंट थी वो मुहैया करवाई गई, फिर उन्होंने एग्जैक्टली वैसा ही अपना घर मान लीजिए कि आपने यहाँ भी बना दिया। तो इस जम्मू तरीके से कश्मीर से उन्होंने गुज्जर, गद्दी और बकरवाल इन सबको ले जाके बनवाया था हाँ उनके हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इनफैक्ट जब इस तरीके के, क्योंकि इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहा है, और ट्राइबल म्यूजियम उसका जैसे मैंने बताया कि ऑफशूट है, पहले सिर्फ इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय हुआ करता था। तो ट्राइबल म्यूजियम जब बना, वो थोड़ा लेट बना, 90s के बाद बना है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय 90s के पहले ही आ गया था, या 90s में आया होगा। तो ट्राइबल म्यूजियम जब बन रहा था तो वहां पे आपको बहुत सारे ओरिजिनल ट्राइबल्स मिलते थे, जो कि अपना घर और वो उसी तरीके से खाना वाना भी खाते थे और सारी चीजें वैसी ही रहते थे। तो कभी कभार लोगों ने वहां पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई होंगी, बनाई है इनफैक्ट। अभी वो यूट्यूब में मिलेगा कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, कि वो कैसे रहते हैं, कैसे बनाते हैं, कंस्ट्रक्शंस कैसे होते हैं, क्या खाते हैं सुबह से शाम तक, एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें भी जो है आपको इंटरनेट पे या ऐसे भी बहुत सारी जगहों पे फ्री वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगी, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय लिखेंगे तो। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हैं कि ये एक ओपन एयर एग्जीबिशन की फोटोग्राफ है, जिसमें कि ओपन एयर एग्जीबिशन हो रहा था। तो ये देखिए पूरा का पूरा मंडप ही बना मारा है। तो ऐसे ना जाने क्या क्या चीजें ये बना के ओपन एयर एग्जीबिशंस में लाते हैं। बहुत बड़ा सा एरिया उनको जो है दिया जाता है, एंड देन दे मेक बेसिकली अ विलेज ओवर देयर। तो वो पूरा का पूरा एक गांव बना देते हैं, वहां पे आपको हर एक चीज मिल जाएगी, हर एक चीज जो कि गांव में होती है। तो एंड वहां पे क्योंकि पानी का सोर्स भी है, तो दे मेक आर्टिफिशियल लेक्स एज वेल, छोटे छोटे। ऐसे भी भोपाल लेक के पास ही है ये बड़ा तालाब, कहते हैं हम लोग अपर लेक। तो जो पानी का वहां से आपको मतलब कनेक्शन भी मिल जाता है और सारी चीजें, तो आप मतलब काफी पानी वहां पे इकट्ठा कर सकते हैं। और थोड़े से ट्रिब्यूटरीज अगर वहां से खोद दिए जाए तो आ भी जाता है, तो इतना कोई इशू नहीं बनता है। तो वो बहुत सारी चीजें इस तरीके की बना देते हैं, सो दैट कि स्पेशली इट इज ए वेरी गुड थिंग। जैसे मैं अभी यूरोप में जाता हूं तो मैंने सुना है कि लोग आजकल सिटीज से ज्यादा जैसे कहते हैं डाउनटाउन एरियाज या विलेजेस या इस तरीके की जगहों पे जाते हैं और जाके देखना चाहते हैं, और बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखो ये चीजें होती हैं, ऐसा ऐसा होता है, एंड सो ऑन। बिकॉज वी स्टे इन अ कॉन्क्रीट जंगल, राइट। तो कॉन्क्रीट जंगल से बाहर निकल के थोड़ा सा उस तरीके की चीजों को देखने का जो है एक अलग ही मजा होता है, और सीखने को भी मिलता है। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ पे आप सभी से शेयर करना चाहूंगा, कि वहां पे जाके इनिशियली आपको कैसा लगता है पता नहीं, पर थोड़े से देर में, एंड स्पेशली अगर आप जिस एज ग्रुप में हैं, अभी जो बच्चे हैं अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जिस एज ग्रुप में है, ये एटलीस्ट इस मेच्योरिटी के एज में है जबकि ये समझ पाएंगे कि वो हमसे कुछ अलग नहीं है। थोड़े से पिछड़े हुए हैं शायद, उन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं करी, स्कूल कॉलेज नहीं गए, लेकिन अगर आप उनसे थोड़ी देर भी बात करेंगे तो हो सकता है कि आपको उनकी भाषा नहीं समझ में आए, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और सारी चीजें समझ में आएंगी। और फिर एक चीज का और जो एहसास होता है, दैट इज दैट एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड मोर और लेस ऑल आर इक्वल। तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो भेदभाव है उनकी भी जरूरत नहीं पड़ती, जो भी। तो अब मैं थोड़ा सा आता हूं आजादी का अमृत महोत्सव पे। अगर आप आजादी का अमृत महोत्सव का ऑब्जेक्टिव देखें तो कहते हैं कि आजादी का अमृत महोत्सव इज एन इंटेंसिव कंट्री वाइड कैंपेन which will focus on citizen participation to be converted into Jan Andolan, where small changes at the local level will add up to significant national gains. और इसमें जो बहुत सारे थीम्स हैं उनमें से एक थीम जो है वो है इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज। जो कहते हैं कि इंडियन वर्ड फॉर कल्चर इज संस्कृति। फ्रॉम टाइम इमोरियल इंडियंस हैव डिस्क्राइब्ड देयर कल्चर एज ह्यूमन कल्चर, मानव धर्म या संस्कृति। और यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ह्यूमन कल्चर, मानव धर्म या संस्कृति पे जाएं, तो हमारे पूर्वज या हमारे जो ट्राइब्स हैं, दे आर बेसिकली होल्डिंग द फर्स्ट इंफॉर्मेशन, है ना। एरिस्टोटल ने एक बार कहा था फर्स्ट कॉज के बारे में, जिसको गॉड कहता है वो। तो इसी तरीके से अगर आप इसमें भी देखें तो दीज पीपल आर एंड देयर कल्चर आर आवर फर्स्ट कॉज। तो उसको समझना और उनको जानना बहुत जरूरी है। It has a universal appeal. The principle of unity in diversity is the implicit law of nature, universe, and life. People belonging to diverse communities, speaking different languages, having different food, performing different customs, harmoniously coexist in India. और यही इंपॉर्टेंट है सोशल एक्सक्लूजन के लिए, कि हमें को एग्जिस्ट करना है ना। और जो है पीसफुल कोहैबिटेशन को जो है एक गोल बनाना है। Thus, the soul of cultural heritage of India lies in the fact
that it is an all-embracing confluence of religions, traditions, customs and beliefs. तो अगर आप ट्राइबल कल्चर्स को थोड़ा सा देखें हमारे देश में, क्योंकि हम उसको ट्राइबल या जनजातीय कहते हैं, तो आप देखोगे कि इट इज एक्चुअली एन अमेजिंग थिंग। और उनके बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, दे आर मोर और लेस लिविंग लाइब्रेरीज, जिनके पास इतनी इंफॉर्मेशन और इतनी नॉलेज होती है। ऑब्वियसली वो बुक्स और कॉपीज में या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को नहीं, लेकिन जो कल्चरल और जिसे कहना चाहिए कि ह्यूमैनिटी को बताने वाली चीजें हैं, वो आपको उनमें मिलेंगी। और उनसे बात करना या उनको समझ पाना, अगर आप कोई ट्रांसलेटर या कोई इंटरप्रेटर के साथ जाते हैं, तो यू विल बी अमेज्ड टू फाइंड दैट ट्रेडिशनल नॉलेज इन देम, जो कि इन रियल सेंस विजडम होता है। तो that is something which I can call upon to you people. Over the years, numerous styles of art, architecture, painting, music, dance, festivals, and customs have developed in India, and this wide variety has made the Indian culture unparalleled, to which the entire world still looks up to. The cultural heritage of India still flourishes, maintaining its original features, together along with changes, a key indicator of its strength. तो जो पुरानी चीजें हैं उनको भूलना नहीं है, उनको भी संजोए रखना है और नई चीजों की तरफ भी जाना है। यही जो है हमारे सारी जैसे मुझे कहना चाहिए कि इस पूरे चाहे वो यूथ हो, चाहे वो इंडिजिनियस पीपल हो या पीसफुल कोहैबिटेशन हो, इन सब चीजों से रिलेटेड है। तो फाइनल वर्ड नहीं है, वर्ड्स हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि सोशल इंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसी के साथ ही जो है सबका साथ और सबका विकास हो पाता है। तो सबका साथ सबका विकास पे बहुत मीम्स बने हैं हमारे देश में, और खास करके जब मेरे ख्याल से वो कानपुर के विकास जो भी थे, वो उनकी मतलब जिसे मुझे कहना चाहिए कि एनकाउंटर के बाद से जो है और ज्यादा बना। लेकिन इन रियल सेंस अगर हम इंडिजिनियस पीपल को, ट्राइबल को हमारे देश में सशक्तिकरण कर सकते हैं उनका, तो फिर जो है मेरे ख्याल से देश में डेवलपमेंट और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो एम्पावरिंग आवर ओन पीपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और उसका जो सबसे बड़ा रास्ता है, और हम लोग तो उसी कोशिश में लगे हुए हैं, हम तीनों फैकल्टीज नहीं, अब तो पूरे देश की एक नीति बन गई है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज जो है पूरे जिसे मुझे कहना चाहिए कि पूरे देश में जो है AICTE से लेके एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज ट्राइंग टू इनकॉर्पोरेट इट, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हर एक चीज का आंसर आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में ही मिलेगा। अगर आप बाकी किसी भी चीज से परेशान है, तो आप देखेंगे कि एट द एंड ऑफ द डे अगर आप अपने वैल्यू सिस्टम को प्रॉपर कर लें, तो आप उसमें काफी ऊपर उठ पाएंगे। ये ईर्ष्या, ये क्या बोलते हैं, इससे रसाकसी, तो उससे प्रॉब्लम, तो ये वो है, वो हम हैं, और ऐसा वैसा, और सारी चीजें जो है खत्म हो सकती है। और जो मतलब ये तो एक लॉन्ग प्रोसेस है, एजुकेशन इज नॉट ए थिंग विच यू कैन गेन इन फोर्टनाइट और सो। लेकिन हाँ, एक चीज जो कि शॉर्ट या कहना चाहिए मुझे कि एक फास्ट हेल्प कर सकता है इन लोगों को, दैट इज प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू देम। क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेकर आएंगे उनके लिए, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज खोले भी गए हैं। ये जो भी खादी ग्राम उद्योग से लेके जितना भी जो स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, और साथ में मुझे कहना चाहिए कॉटेज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट है, वो इनको भी रखता है अपने साथ, और इनसे काफी सारी जो है सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देता है। तो इसमें थोड़ी सी और बढ़ोतरी करने की जरूरत है। साथ में इनको हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, या इनको पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि देखिए जब तक आप किसी को से नहीं दोगे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स इज नॉट अ बैड वर्ड। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है कि स्टेट और सब्जेक्ट की बीच की जो पॉलिसीज है, या एडमिनिस्ट्रेशन की, या गवर्नेंस की जो रिक्वायरमेंट है, तो गवर्नेंस में जब तक इनका से नहीं दोगे तब तक इनको आगे नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो इसलिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए हैं, और ऑब्वियसली ट्राइबल वेलफेयर एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे देश में। साथ में आपको पता नहीं होगा, हमारे देश में बहुत सारे स्पोर्ट्स एंड लीजर एक्टिविटीज ट्राइबल्स के भी जो है टारगेट करते हैं। जैसे आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम सुना होगा, साई कहते हैं उसको। उसी की एक एजेंसी है जो कि दूर दराज के गांव में जाके टैलेंट ढूंढती है, और ऐसे बहुत सारे टैलेंट्स जो हैं हमारे ओलंपिक, एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करके मेडल्स जीते हैं। तो आप एक कंप्लीट लिस्ट ढूंढ के निकाल सकते हैं इंटरनेट में, जो कि इस तरीके की जिसे कहना चाहिए कि टैलेंट हंट से
पाए गए हैं और फिर उनको ट्रेन किया गया। क्योंकि देखिए एक होती है बात टैलेंट या पावर, दूसरा होता है उनको ट्रेन करना, जो मॉडर्न गेम्स हैं और उनके रूल्स को फॉलो करवाना और उसमें टेक्निकलिटी को समझाना। तो पावर एक चीज है और उसको टेक्निकली स्किलफुली उस चीज को इम्प्लीमेंट कराना दूसरी चीज है। तो इसके लिए भी बहुत सारे जो है संस्थान है और चीजें करी जा रही है, लेकिन अभी भी और करना है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है लेकिन हम उसको अभी भी टैप नहीं कर पाते। और मैं तो ये बहुत बार बोलता रहता हूँ, इवन इफ आई एम अ टीचर, दैट सभी को पढ़ना लिखना है, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी करना है, ये जरूरी नहीं है। आप थोड़ा बहुत एजुकेशन लेने के बाद अपनी अपनी खुद की फील्ड्स डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या, आप किस चीज में ज्यादा अच्छे हैं, वो किया जा सकता है। और यही तरीका है जिससे कि आप उनको आत्मनिर्भर बना पाएंगे। क्योंकि जब तक वो हमारे ऊपर या किसी चीजों पे डिपेंडेंट होंगे और एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहेंगे, तब तक उनका डिसेंट, उनका रिसेंटमेंट या उनका सरकार के खिलाफ एक जो नेगेटिव रवैया है वो खत्म नहीं हो पाएगा। और हमारा भी ऑब्वियसली फिर उनके प्रति एक दमनकारी जो है वो हो जाता है वो भी। लेकिन अब काफी इसमें स्टेप्स लिए गए हैं, काफी कुछ जो है कम हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और एसोसिएशंस जो हैं इस तरीके के स्टेप्स लेते रहते हैं, जिसके कारण से आए दिन प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। लेकिन आई विल से और आई होप कि आजादी का अमृत महोत्सव या इस तरीके के और भी बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स भारत सरकार ले रही है, उसके द्वारा हम ऐसे लोगों को भी जो है इंक्लूड कर पाएंगे मेन स्ट्रीम के साथ। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड।